قواعد کے بارے میں جانیں، کیونکہ اردو زبان کو جب ہم جانیں گے، اسے پڑھیں گے، تو اس کو اچھی طرح جانکاری کے لیے ہمیں قواعد جاننا ضروری ہے۔ کسی بھی زبان کو ہم سمجھیں یا جانیں، پڑھیں، اس کے گرامر کو جاننا ضروری ہے ہمارے لیے، تبھی ہم اس زبان پر اچھی طرح سے سبقت لے جا سکیں گے، اس زبان کو ہم اچھی طرح سمجھیں گے۔ اچھی طرح بولنے کے لیے، اچھی طرح لکھنے کے لیے، اچھی طرح پڑھنے کے لیے ہمیں گرامر کا جاننا ضروری ہے، یعنی قواعد کا جاننا ضروری ہے۔ ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قواعد: جس طرح ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کچھ اصولوں، کچھ طریقوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح کسی بھی زبان کو ٹھیک طرح سے بولنے، سمجھنے یا لکھنے کے لیے اس کے قواعد کو جاننا ضروری ہے، تاکہ ہم وہ زبان صحیح طریقے سے بولیں اور لکھیں۔ جیسے تلفظ کا استعمال، واحد جمع کا استعمال، موضوع الفاظ کا استعمال وغیرہ وغیرہ۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ کسی بھی زبان کو صحیح طریقے سے بولنے کے لیے، اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس کے گرامر یعنی قواعد کو جاننا ضروری ہے۔ اور قواعد کے جاننے سے ہمیں کیا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا تلفظ، پروننسیشن، اس کا صحیح استعمال ہوتا ہے۔ کہاں پر جیم کا استعمال ہوگا، کہاں پر زے کا استعمال ہوگا، کہاں پر سین کا استعمال ہوگا، کہاں پر شین کا استعمال ہوگا۔ تو اکثر لوگ غلط کرتے ہیں سین اور شین، جیسے مان لیا شادی ہے تو شادی بولتے ہیں، زہر تو جہر، کسی طرح سے بھی، یعنی یہ تلفظ کا استعمال، اس کا صحیح استعمال ہمیں گرامر پڑھ کے ہی پتا چلے گا، قواعد پڑھ کر ہی پتا چلے گا۔ دوسرے ہے واحد جمع کا استعمال۔ کہاں پر واحد یعنی ایک، جمع یعنی ایک سے زیادہ، کہاں پر واحد کا استعمال ہونا چاہیے، کہاں پر جمع کا استعمال ہونا چاہیے، اسے کس طرح پڑھنا چاہیے۔ اگر ایک مان لیا ایک لڑکا ہے تو وہاں پہ لڑکا، آیا، آئے، اس طرح سے۔ اگر ہم یہاں پر آئے ہوگا تو وہاں پر لڑکے ہوگا، لڑکے آئے۔ تو واحد جمع کا صحیح استعمال بھی ہمیں قواعد کو جاننے کے لیے ضروری ہے۔ دوسرا ہے موضوع الفاظ کا استعمال۔ جب ہم سینٹینس بناتے ہیں، جملہ بناتے ہیں، تو اس کے بیچ میں کہاں پر کون سا لفظ موضوع ہے، اس الفاظ کا استعمال وہ بھی ضروری ہے۔ تو قواعد کو ماہرین زبان نے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کتنے حصوں میں بانٹا ہے؟ 5 حصوں میں۔ قواعد کو 5 حصوں میں بانٹا ہے: علم ہجہ، علم صرف، علم نحو، علم اوقاف، علم عروض۔ یہ 5 حصوں میں قواعد کو، اردو قواعد کو بانٹا گیا ہے، تقسیم کیا گیا ہے۔ تو علم ہجہ ہم سب سے پہلے ہم علم ہجہ کے بارے میں جانیں گے، جو حروف تہجی کہتے ہیں۔ ابجد یعنی جب ہم بچے کو پڑھایا جاتا ہے اردو، تو سب سے پہلے اس کو ابجد یعنی الف با تا یہ پڑھایا جاتا ہے، حروف کی پہچان کرائی جاتی ہے۔ پہلے سب سے پہلے بچوں کو کسی بھی لینگویج کو ہم پڑھیں، کسی بھی زبان کو پڑھیں، تو پہلے ہم اس کے حروف، الفابیٹ، اکشر، اس کی پہچان ہم کرتے ہیں۔ تو ہجہ کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ ہجہ کا دوسرا نام حروف تہجی بھی ہے۔ ہجہ کے معنی ہے حروف کو توڑ کر یعنی الگ الگ کر کے ان کے ہجے کرنے کی واقفیت رکھنا۔ اس کے لیے ہمیں ابجد یعنی حروف کے مجموعے کو جاننا ضروری ہے، کہ کوئی بھی لفظ ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں کون سا حروف ہے، اس کے حروف کے مجموعے کو جاننا ضروری ہے۔ تو یہ ابجد یعنی حروف ہے، یہ الف ب پ یہ سے شروع ہو کر یہ پر ختم ہوتا ہے۔ حروف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک مفرد، مرکب۔ حروف کی آواز جو ہمارے منہ سے نکلتی ہے، تو یہ اس کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد حروف کہتے ہیں
अलीफ बा पा इस तरह के हरूफ की आवाज जब हमारे मुंह से निकलती है तो ये तन्हा आवाज जाहिर करती है। जब हम अलीफ बा बोलते हैं इसमें कोई दूसरे हर्फ की आवाज नहीं आ रही है। पा बोला, पा की आवाज हमारे मुंह से निकली तो इसमें कोई दूसरे हर्फ की आवाज जाहिर नहीं होती है, ये तन्हा आवाज जाहिर करती है। इसके साथ दूसरे अल्फाज नहीं होते, जैसे सीन, पा, बा, ये तन्हा आवाज जाहिर कर रही है। मुफरद के मानी ही होते हैं अकेला, तन्हा आवाज जाहिर करती है। अब मुरक्कब हरूफ, मुरक्कब के मानी होते हैं मिला हुआ, जैसा कि जाहिर है इससे मिला हुआ मुरक्कब हरूफ तो दो हरफों की आवाज निकलती है। मुरक्कब के मानी है मिला हुआ, कुछ ऐसे अल्फाज हमारे मुंह से निकलते हैं जिसमें दो हर्फ मिले होते हैं, जैसे भा, फा, था, ठा। इसमें देखिए बा की भी आवाज जाहिर हो रही है और हा की, है ना, बा प्लस हा, दो हर्फों की आवाज है इसमें। पा प्लस हा फा, ता प्लस हा था, टा प्लस हा ठा। इस तरह की आवाज होती है भा, फा, था, ठा, झा, धा, ढा। तो इस तरह के जो अल्फाज हुए हैं दो हरफों के मेल से बने हैं, ये दो हरफों के मेल से एक मुरक्कब आवाज निकलती है। इसका दूसरा नाम हकारी हुरूफ है। मुरक्कब हरूफ का दूसरा नाम क्या है? हकारी हुरूफ। इसका दूसरा नाम हुआ हकारी हुरूफ। तो इन आवाजों के इख्तलाफ, चूंकि हमारे हुरूफ तहजी जो है उसमें कुछ हरफ ऐसे हैं जो उसमें इख्तलाफ है, उस इख्तलाफ की वजह कर इसे किस्मों में बांटा गया है। तो आवाजों के इख्तलाफ की वजह कर कुछ हरफों को किस्मों में बांटा गया है। कौन कौन से वो हरफ है? जैसे अलीफ, नून, वाव, हा, या। ये 5 याद रखिएगा। इस तरह आप इंग्लिश में याद रखते हैं ना वॉवेल, वॉवेल याद रखते हैं AEIOU, इस तरह से इसमें भी देखिए ये 5 हैं। मैंने एक मिसाल दिया है कि जैसे वॉवेल आप 5 याद रखते हैं वैसे ही 5 इसमें भी याद रखें कि 5 हरफों में इख्तलाफ है, अलीफ, नून, वाव, हा, या। ये 5 हरूफ हैं जिनमें इख्तलाफ है, इसे किस्मों में बांटा गया है। तो अलीफ की 2 किस्में हैं, अलीफ को 2 किस्मों में बांटा गया है, अलीफ ममदूदा और अलीफ मकसूरा। अलीफ ममदूदा वो अलीफ जिसकी आवाज खींच कर निकाली जाए, इसका तलफ्फुज निकालते वक्त मुंह पूरा खुला होता है, जैसे आम, आज, आप वगैरह। जब हम देखिए आम बोलते हैं ना, आम, आज, आप, ये मद होना चाहिए, ये मद है। जिस अलीफ पर ये मद होता है, यहाँ पर भी देखे ये मद है, यहाँ पर भी मद है, तो इसे थोड़ा खींचकर आवाज निकलती है। दूसरा है अलीफ मकसूरा, इसकी आवाज सादा यानी नॉर्मल होती है, इसकी आवाज सादा होती है, जैसे अब, अलीफ बाज़बर अब, असगर, अलीफ साज़र अस, गैन ज़बर गर, असगर, अहमद वगैरह। तो मकसूरा के मानी होते हैं छोटा किया हुआ, मकसूरा के मानी क्या है? छोटा किया हुआ। तो कुछ अरबी जब अल्फाज हम पढ़ते हैं तो कुछ अरबी अल्फाज में देखेंगे कि ये पर जबर यानी खड़े जबर दी जाती है, जैसे या, मिसाल के तौर अदना ईसा। तो जब हम कुछ अरबी अल्फाज पढ़ते हैं उसमें देखिएगा कि इस या पर ऐसा छोटा सा ये दिया हुआ है जबर, जिसे हम खड़ी जबर कहते हैं। तो अदना, अदना में यहाँ पर ये पर खड़ा जबर है, तो ये अलीफ की आवाज जाहिर करती है यहाँ, लेकिन यहाँ पर अलीफ नहीं लिखना है बल्कि ये पर खड़ी जबर देना है। ईसा, ईसा में भी यहाँ पर अलीफ की आवाज आखिर में जाहिर हो रही है लेकिन ये पर खड़ी जबर देना है, तो ये अलीफ मकसूरा हुआ। दूसरी है नून की 2 किस्में, नून को भी 2 किस्मों में बांटा गया है। नून जाहिर, पहला है नून जाहिर, इस नून की आवाज साफ तौर पर जाहिर होती है,
हमारे मुंह से जो आवाज निकलती है, तो नून की आवाज पूरी तौर पर जाहिर होती है। इस तरह के नून होते हैं, जैसे नेक, अमन, बदन। नेक में देखिए पहले शुरू में नून की आवाज पूरी जाहिर हुई। अमन, इसमें नून की आवाज आखिर में जाहिर हुई। बदन, इसमें नून की आवाज आखिर में जाहिर हुई। दूसरा है नून गुन्ना। जिस नून की आवाज साफ तौर पर जाहिर नहीं होती, बल्कि इसकी आवाज नाक से निकलती है, यह है नून गुन्ना। देखिए इसमें बीच में नुक्ता नहीं होता है, जैसे यहाँ, वहां, कहाँ। तो यहाँ आखिर में नून गुन्ना आया है, इसमें नून की आवाज जाहिर नहीं हो रही है, बल्कि नाक से आवाज निकलती है, यहाँ, वहां, कहाँ। वाव की 3 किस्में। वाव को 3 किस्मों में बांटा गया है। नंबर 1 है वाव मारूफ। उस वाव को उल्टे पेश के साथ पढ़ा जाता है। यानी वाव मारूफ को किसमें, जब हम उल्टा पेश ऊपर में रहता है और लफ्ज के ऊपर, ये देखिए उल्टा पेश है, उल्टा पेश के साथ पढ़ा जाता है और इसकी आवाज खींच कर निकाली जाती है। जिस पर देखें कि ये उल्टा पेश है तो उसको खींच कर आवाज निकालनी चाहिए, जैसे दूर, हूर, चूर वगैरह। वाव मजहूल, ये सिर्फ वाव के साथ पढ़ा जाता है और इसे खींच कर नहीं पढ़ा जाता, जिस पर जैसे ढोल, शोर, मोर वगैरह। इसे हम जल्दी पढ़ेंगे, ढोल, शोर, मोर वगैरह, ये वाव मजहूल हो गया। वाव मादूला। वाव मादूला ऐसा वाव है जो सिर्फ लिखने में आए मगर पढ़ने में इसका तलफ्फुज नहीं होता, जैसे ख्वाब, ख्वाहिश, दस्तरखान वगैरह। यहाँ देखें ख्वाब, यहाँ पर हम हिज्जा अगर करेंगे तो इसका ख्वाब होगा, लेकिन इसे पढ़ा जाएगा ख्वाब। यहाँ पर वाव साइलेंट हो जाएगा, उसकी आवाज नहीं निकलती है। जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हैं ना वाक, WAL के वाक, एल की आवाज नहीं निकलती, एल साइलेंट हो जाता है। नी, इसमें साइलेंट हो जाता है, वाक, नी, नाइफ, इसम। तो उसी तरह यहाँ पर हम उर्दू में देखते हैं कि यहाँ पर वाव, इसकी आवाज जब हम इसका इसे पढ़ेंगे तो इसकी आवाज जाहिर नहीं होगी, वाव की आवाज। ख्वाब, ख्वाहिश, दस्तरखान वगैरह। उसके बाद है हा की किस्में। हा को भी 2 किस्मों में बांटा गया, हाय मुख्तफी या हाय खफी। मुख्तफी या मुख्तफी, इसके मानी क्या होता है, छुपा हुआ। तो वो हा जो साफ तौर पर पढ़ने में न आए, उसकी आवाज छुपी हुई यानी अपने से पहले वाली हरफ की हरकत को जाहिर करे, जैसे नामा, आला, हफ्ता, बंदा वगैरह। इसमें देखें हे की आवाज जाहिर नहीं हो रही है, हे को हम इस तरह से आखिर में लिखा गया है, लिखने में आया है। यहाँ पर ये हे भी लिखने में आया है, यहाँ पर भी लिखने में आया है, ये भी है, यहाँ पर हे पूरा लिखा गया है, लेकिन इसे पढ़ने में हम जाहिर नहीं करते हैं, सिर्फ लिखने के काम आएगा। ये यहाँ पर हे की आवाज जाहिर नहीं होगी, वो छुपी हुई है। हाय मलफूजी। हाय मलफूजी कहते हैं वो हा जिसकी आवाज साफ तौर पर जाहिर हो, जैसे वाह, पनाह, शाह वगैरह। इसमें देखें इन अल्फाज में हा की आवाज जाहिर हो रही है, वाह में हा की आवाज जाहिर हुई, पनाह, शाह, इन सब में हा की आवाज जाहिर हो जाती है। उसके बाद है या की भी 2 किस्में हैं, या मारूफ। इस या की आवाज खींच कर निकाली जाती है, इसे छोटी या भी कहते हैं, जैसे रोटी, मोती, रूई वगैरह। इसमें रोटी, देखिए टी को थोड़ा खींचा, मोती इसको नीचे की तरफ खींचते हैं, रूई इसको भी नीचे की तरफ खींचते हैं, ये छोटी या है लेकिन खींच कर पढ़ते हैं। तो या मजहूल उस या की आवाज खींच कर नहीं निकलती, जैसे लड़के, बड़े वगैरह। या मजहूल ये जिसे हम बड़ी या भी कहते हैं।
तो ये हुए अलीफ से लेकर या तक में 5 हरफों में इख्तलाफ है। इनको किस्मों में बांटा गया है, अलीफ, नून, वाव, हा, या। तो ये थे हरफों की किस्में जिन हरफों में इख्तलाफ है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो से कुछ मदद मिलती होगी। आप इसे ध्यान से देखें, और चूंकि ग्रामर है बच्चों, ग्रामर को ध्यान से पढ़ा करें। उसे जो समझ में नहीं आए उसे बार बार रिपीट करें, बार बार पढ़ें। ऐसा नहीं कि एक बार इसे पढ़ करके आप फिर इसे बंद कर दे, भूल जाए। ग्रामर की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, वैसे तो हर सब्जेक्ट का करना है। ग्रामर चूंकि आगे समझने के लिए हर चैप्टर को आपको देखना ज़रूरी है। आगे की ग्रामर जब आप पीछे का पढ़े रहेंगे तभी आपको आगे की ग्रामर समझ में आएगी। तो आप मेरी वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अगले लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। और हाँ, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे।